This is Hazara Division in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Made up of 5 districts, Haripur, Abbottabad, Mansehra, Battagram and Kohistan. Its population in 2005 was more than 4.5 million. The majority of people here live in the rural areas, and like most of Pakistan, the region is far from homogeneous. Extreme poverty, low levels of literacy, and years of neglect have widened the divide between the urban and rural areas. But over the years, a quiet change is taking place in the hills of Hazara. Sangeet Development Foundation was founded by Umar Asghar Khan in 1990. With 15 years of activism behind him, Umar sought to give a voice to the most vulnerable groups in society. उमर ने जब संगी शुरू करने का सोचा वो ऐसे कि जब इलेक्शंस में खड़े हुए थे उमर, तो वहाँ मौका मिला उनको काफ़ी देहातों में जाने का और गलियों में छोटे शहरों में जाने का। तो वहाँ उन्होंने महसूस किया कि जीते ना जीते मगर काम करने की यहाँ ज़रूरत है। उनकी जो शनाख्त थी वो एक ऐसे नौजवान की थी कि जो वो कोई बड़े फ्यूडल ख़ानदान से नहीं थे, लेकिन वो एक जो है वो बाअसर और वेल ऑफ ख़ानदान से थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जोड़ा मेहनत करने वाले लोगों के साथ। Umar started Sangi from funds borrowed from his parents and with just one other colleague. 7 कुर्सियाँ और एक टूटी फूटी मेज़ एयर मार्शल असर खान साहब से बतौर उधार मैंने ली, तो वह वहाँ बैठ गया। अब मुझे उमर साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि तंजीमें बनानी है और काम करना है। Amongst the most vulnerable, there is one group that is almost completely absent in public space. 20 years ago, in the conservative Khyber Pakhtunkhwa, there were even more restrictions limiting women's presence in public spaces. For Sangi at that time, the challenge was twofold. First, to find young women who were willing to go and work with the communities, and secondly, to get the community to meet with the Sangi team. ख़वातीन को तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी घरों से बाहर जाने की, तंजीम साजी करने की, लेकिन न जाने ये क्या सीखेंगी, एनजीओ ने क्या सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी उस तरह फंडिंग तो नहीं थी। हम लोग तो पैदल विजिट करते थे सारा सारा दिन। एक ऐसा गांव भी था जहाँ पे शायद मैंने शेयर किया था आपको कि मैंने 13 विजिट किए थे पैदल, और उस गाँव की ख़वातीन ने इंतहाई हमें परेशान किया, क्योंकि मर्दों की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि आप तंजीम बनाएँ। In the early years, Sangi's funds did not even cover a jeep, that most essential form of transport in this rugged mountainous region where roads can be treacherous. Traveling to far-flung villages was no less than an adventure, and often fraught with danger. जिस डाटसन में हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर साथ ही मुर्गियाँ भी थीं, बकरियाँ भी थीं, मर्द भी थे। बोरियों पे हम लोग बैठ के हमने सफ़र किया और निहायत ठंड में। और जब हम उस गांव में पहुँचे तो मतलब मुझे तो लग रहा था कि शायद दूसरे दिन मेरे लिए आना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात है कि जो कमिटमेंट थी हमारी और हर रोज़ वो बढ़ती जा रही थी। Our thrust is basically to provide a framework, a governance framework, which is just, equal, and has an equity of the people in it. And that is basically Sangi's vision as well as mission. To bridge the widening gap between state institutions and communities, a multi-tiered system starts at the village level, where VCs or village committees are set up. A women's VC is a prerequisite for Sangi to start work in any area.
Da ism nishta damanga. Sakul nishta. This community organization is revisiting its village development plan. As they map out the village landmarks, new schools, shops, and health facilities have emerged. Another transformation has been a change in attitudes. 96 से यहाँ संगी ने पहला कदम रखा, उस दिन से लेकर आज तक हमारे इलाके में बहुत बड़ी अचीवमेंट और काफ़ी हद तक चेंज आ चुकी है। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, यहाँ पर तंजीम के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात एक सबूत के तौर पर नज़र आ रही है कि मर्द और ख़वातीन एक प्लेटफॉर्म पर बहन भाइयों की तरह इकट्ठे बैठे हुए हैं। A group of village committees form Area Coordination Councils or ACCs, which design their area development plans and take up issues that concern the communities at the union and district levels. Health, education and livelihood are the most pressing issues. The impact of Sangi's intervention has left imprints beyond the individual. ये संगी ने हमें कुछ शऊर बख्शा कि पानी स्टोर करने का तरीका बताया। उन्होंने हमें ये 2 तालाब बना के दिए हैं। ये संगी से लोन ले के कर्जा और ये जंगल का जो स्कीम चलाया था, ये जंगल चलाया, इससे हमें माशाअल्लाह ये रोज़गार मिल गया है। हम अपनी रोज़ी खुद अपनी भी पीसते हैं और गांव के लोगों का आटा पीस करके, और इससे हम उजरत लेते हैं माशाअल्लाह, और अपनी अच्छी बड़ी इनकम हो गई है। संगी ने मुझे पहले वो कहते रहे कि तुम स्कूल पढ़ो ना, फिर मुझे शौक़ नहीं आया है। जब उन्होंने मुझे कर्जा दिया तो संगी एक और उन्होंने कहा कि जब तक तुम नाम ना लिखोगी तो मैं तुम्हें कर्जा नहीं दूंगी ना। वैसे उसने कहा, लेकिन वो अनपढ़ों को भी दे देते, लेकिन उसका शौक़ था कि मैं पढ़ूँ। फिर मैंने नाम लिखा है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा लिखती गई हूँ, तो अब मैं स्कूल में फिर बाद में दाखिला ले लिया। अब 9th में हूँ, तो अब तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र। अब जब कोई कहता तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुम अभी 9th में पढ़ी हो, मैंने कहा मेरे लिए यही सब कुछ है। हम तो वैसे इस तरह रह रहे थे जैसे रह रहे हैं। यहाँ में हमें प्रॉब्लम रहा है इसका रास्ते का ज़्यादातर। इसमें ये होता है कि हमारा कोई बीमार हो, मरीज़ हो, कुछ हो, तो उसको ले जाने के लिए हमें कभी चरपाई ढूंढनी पड़ती है, कभी आदमी इकट्ठे करने पड़ते थे जी, तो वो ऊपर गली में हम पहुँचाते थे, फिर वहाँ से कन्वेंस का कोई मसला करके हॉस्पिटल तक पहुँचाते। The village committee contributed the labor as well as 1/3 of the cost towards the road's construction, while the remainder was funded by Sangi. तो अब इस रोड की सहूलत की वजह हमें इतनी खुशी है, इतनी ज़िंदगी में हमारी चेंजिंग आई है कि इतनी आई है कि हम लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ मिल चुका है। Sangi has supported hundreds of schemes to benefit the rural poor. At the district level, Sangi has made links between line departments and ACCs through various forums. The District Health Forum in Haripur is one such linkage. जब से ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फोरम बना और हमारे एक्टिविस्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आकर बैठे हैं, तो 100% वो पोलियो कैंपेन कामयाब हुई हैं। और किसी गांव में, किसी यूनियन काउंसिल के फार फ्लांग जो एरियाज़ हैं, उनमें अगर किसी गांव में वो टीम नहीं जाती तो नेक्स्ट डे वहाँ का एक्टिविस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्फॉर्म करते थे कि जी यहाँ पर टीम नहीं पहुँची, और वो टीम दोबारा वहाँ पर जाती थी। Sangi has extended its scope of work as well as area of operation beyond Khyber Pakhtunkhwa. Despite this growth, the organization has stayed true to the egalitarian spirit of its founder. वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी ये फ़र्क नहीं समझा कि ये एक ऑफिस बॉय है या कुक है, ये हमारा कोई क्लीनर है या हमारा कोई ड्राइवर है, तो वो हमारे साथ मिल बैठ कर खाना भी खाते थे। तो ये चीज़ें थी उमर साहब की दी हुई, जिनकी वजह से आज तक हम संगी के साथ हैं। और संगी एक ऐसा इदारा है जिसको हम अपनी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। हमारी रूह में बस चुका है ये इदारा और इसकी चीज़ें। Advocacy at the policy making level is an integral part of Sangi's work.
Initiatives include organizing the displaced of Darbela Dam to demand fair compensation with a national policy for the displaced drafted, to bringing forest dwellers of Malakand and Dir under one platform, Sarhad Awami Forestry Ittihad or SAFI, which was successful in getting their demands for royalty accepted. And taking voices of villages affected by Hattar industrial pollution to the corridors of power. At the national level, advocacy partnerships include the National Drinking Water Policy in 2009 and a report on the environmental and social aspects of the Dayamir Bhasha Dam. मैं कहूँगा कि ये एनजीओ में नहीं कहूँगा अब संगी को, संगी अब 20 वर्ष में एक इदारा बन गया है और एक ऐसा इदारा बन गया है कि जो मैं समझता हूँ आगे जाकर सिविल सोसाइटी को मतलब उनके असल रूप में, असल रोल में ले आने के लिए जदोजहद कर रहे हैं. Sangi's activists and staff were amongst the foot soldiers of the movement for the restoration of the judiciary, with 8 getting arrested. Since 1994, when its founder became a member of Pakistan-India People's Forum for Peace and Democracy, Sangi has been actively working for peace and denuclearization of the region. In 2005, an earthquake hit the northern areas of Pakistan with devastating effect. While thousands died and were injured, it left more than 3 million people homeless. Sangi was one of the main NGOs to start relief and rehabilitation in the earthquake-hit areas of Abbottabad, Mansehra, Battagram and Muzaffarabad. With boundaries and houses torn down by the earthquake, private space for women had shrunk. In hand with the community, Sangi together with Shirkatga, a women's NGO, set up women-friendly spaces where women could gather, sit and just talk. These spaces are now full-fledged centers run by Sangi Funding, where women get together for trainings, adult literacy classes or just for some spirited discussions. सही नहीं, वो गलत होता है और उसका जुल्म करता है, मर्द भी ज़्यादा खराब होते हैं, औरतें ज़्यादा खराब नहीं होती, मर्द भी ज़्यादा खराब होते हैं, मर्द ज़्यादा खराब क्या जे मर्द अपनी बीवियों छोड़ा दूसरी बीवियों का ज़्यादा मर्द ज़्यादा खराब. Their success has resulted in more women-friendly spaces being built. In 2008, Sangi again played a vital role in bringing relief to the victims of an earthquake in Balochistan. A disaster management and relief cell has been established with the local government's collaboration. संगी जो है इसने अर्थक्वेक के बाद ना डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल हमें बना के दिया है, उसे फुली इक्विप किया है और फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहे हैं, सैलरीज़ वगैरह वो सब दे रहे हैं. और आपको ये मैं बताता चलूँ कि इस सेल ने अभी दोबारा ये जो हमारा जो IDPs जो आए हैं स्वात की सिचुएशन की वजह से, जो 20-25-30 हज़ार लोग 2700 फैमिलीज़ यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का काम ये कर रहे हैं, पूरी फुली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कार्ड्स इशू कर रहे हैं, उन लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ इनके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं. In 2008, Sangi developed a platform for the voices of women, men and children traumatized by the terror unleashed by events in Swat. This merged in 2009 with the Tribal Network, where other peace activists and political parties came together to strategize on the terrorism in the Malakand and Fata. Sangi's focus on women's empowerment has given a new lease of life to many who had no one to turn to. Kausar Bibi's story is one such example. ज़लज़ले के बाद मेरा बच्चा मकान के अंदर आ गया, हम बच्चे को निकालने के लिए गए और मेरे मियाँ ज़ख्मी हो गए. अब मेरी 5 बेटियाँ थी, 2 बेटे थे, तो मेरे घर का सब कुछ टूट गया. ऐसे वक्त में मैं चली गई कि मेरे घर में बच्चे मेरे भूखे रहने लगे.
महीने में हमें 10 दिन रोटी खाने को मिलती थी और 20 दिन हम लोग भूखे रहते थे। बहुत बुरे हालात हो गए मेरे। फिर संगी तंजीम गई, सुना मैंने कि संगी तंजीम वालों की मीटिंग है, उसमें मैं चली गई। उस वक्त का ये वाक़या था कि उस वक्त से 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे। जब संगी तंजीम वालों ने एक खाने का बंदोबस्त था, उनके साथ बिरयानी दे रहे थे, लेकिन वो खाना मैं खा नहीं सकती थी। मेरा 4 साल का बच्चा मुझसे बार बार सवाल पूछता था कि मुझे खाना दो, तो मेरे पास उससे खाना नहीं था। लेकिन उस जगह से मैं खाना उसके लिए ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत लोग उधर बैठे थे, ख़वातीन थी, मर्द थी। लेकिन खाना तो मैंने खाया, लेकिन बच्चे की चीखों पुकार मेरी आंखों के सामने रही। फिर उस वक़्त शहनाज शकील थी, वो फिर दोबारा उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कुछ आपके पास ऑर्डर है। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना आता। फिर उसके बाद फिर मीटिंग की, फिर गुलसाना बाजी थी उनके साथ। उन्होंने बोला कि हम खुद तुम्हें एक छोटा सा काम मैं सिखाऊंगी, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगी। फिर उन्होंने मोतियों का काम मुझे दिया, माला बनाने का। फिर मैं उनके साथ माला बनाने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मुझे काम मिलता रहा, मैं काम करती रही। मेरे घर का चूल्हा फिर से जल गया। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना घर का खाने लगे। किसी की मिठाई भी ख़त्म हो गई। The dying art of Jisti, an ancient form of embroidery, has been revived. Following a range of trainings, a craft which was previously a hobby for women is now a full-fledged enterprise. फ़र्क ये लगा है, देखें पहले हम फ्री बना के देते थे, अब पैसे ले रहे हैं तो अच्छा लगा है, तो आगे तक हमारी चीज़ें जाती हैं, अच्छी लगी हैं सबको। सब लोगों ने इतनी तारीफ़ की है तो हमारा भी हौसला बढ़ा है। संगी के साथ उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोग अपने हुनर का इस्तेमाल करके आगे दें, आगे तक वो बिके, फिर हमारी आमदनी का भी ज़रिया बना है और बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है इससे। तो उस टाइम हमारे हालात बहुत ही मुश्किल, बहुत ही जैसे आप सोच भी नहीं सकते कि किस हालात में हम लोग थे। कभी किसी लड़की को स्कूल नहीं पढ़ाया कि मर्द कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे से ख़र्चे भी नहीं बर्दाश्त होते।